بہت شکریہ. زبانوں کو معطر فرمائیے ذکر درود پاک سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین. الصلاۃ والسلام وتحیتہ الاکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد. نادی علی مسحر العجائب تجد ہون لقا فی النوائب کل غم و غم سائن جلی بے علی مل کے باباز بلند صلوات پڑھئے. دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. مالک بانیان مجالس عشرہ محرم الحرام جناب سجاد صاحب ان کے عزیزہ رفقا پورے خانوادے کی یہ نوکری اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت میں شمار فرمائے. میرا مالک اس ذکر کا صدقہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. میرا مالک جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے اولاد عطا فرما. میرا مالک اسے ماتمی امام حسین کی عزادار اولاد عطا فرما. کوئی بے روزگار ہے تو بہترین روزگار عطا فرما. میرا مالک کوئی بیمار ہے تو اس ذکر کا صدقہ شفا یاب فرما. سب دعاؤں کی ایک دعا جس بندے کے دل میں جتنی تڑپ جتنی ضرورت جتنی حسرت ہے بندہ اتنی حسرت سے آمین ضرور کہے. میرا مالک ضرورت زمانہ حجت دوران حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما. دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے بابا اللہ. بڑی مہربانی جی. سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجالس عشرہ محرم الحرام کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا. یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں, بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں, اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا دیتے ہیں. اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں. اپنی چوکھڑ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں. اور اگر حبش سے آیا ہوا کوئی معمولی غلام ان کے در دولت پہ خلوص نیت کے ساتھ جھک جائے تو پھر اسے اتنا نوازتے ہیں کہ بلال اس قابل ہو جاتا ہے کہ سورج کی تنابیں کھینچ کے وقت کی نبضیں روک لیتا ہے. جی بڑی مہربانی. مالک آپ کو سلامت رکھیں. امام زمانہ آپ کی نوکریاں قبول فرمائیں. کل میں نے خطبہ پڑھا تھا حسین کے رہوار کا. آج خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں علی کی تلوار کا. جی بڑی مہربانی. مالک آپ کو سلامت رکھیں. صرف محب علی کے لیے جہاں میں حسن. میں موضوع کی تمہید باندھنے کے لیے یہ ایک دو اشعار پڑھوں گا. صرف محب علی کے لیے جہاں میں حسن. کس کے لیے؟ آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے. جو بندہ علی سے محبت رکھتا ہے ضروری نہیں وہ لکھو ڈار کے رہنے والا ہو, ضروری نہیں اس وقت اس مجلس میں بیٹھا ہو, ضروری نہیں پاکستان میں رہنے والا ہو, ضروری نہیں کہ صرف اس کا رنگ, ضروری نہیں کہ رنگ ایک ہو, ضروری نہیں کہ کسی خاص نسل کا ہو. جو صرف محب علی کے لیے جہاں میں حسن, صرف محب علی کے لیے جہاں میں حسن, یہ جنتوں کی ہے خلقت خدا کا وعدہ ہے. ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ میں نے کہا صرف محب علی کے لیے جہاں میں حسن, صرف محب علی کے لیے جہاں میں حسن, کسی دوسرے تیسرے کے لیے نہیں. آپ کے لیے, میرے لیے, علی کے چاہنے والوں کے لیے, علی کی ولایت دل میں رکھنے والوں کے لیے, صرف محب علی کے لیے جہاں میں حسن. یہ جنتوں کی ہے خلقت خدا کا وعدہ ہے, یہ بات سچ ہے, پیغمبر نے ہی بتایا ہے. علی کا جو بھی عدو ہے حرام زادہ ہے.
یا مالک آپ کی مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. علی کا جو بھی عدو ہے حرام زادہ ہے. گھر سے نکلے امیر المومنین. میں نے بات شروع کر دی جناب. گھر سے نکلے امیر المومنین ایک جنگ کے لیے. اچھا جی، راستے میں ایک شخص ملا، مولا کے ماننے والا تھا. کہتا مولا پوچھنا چاہتا ہوں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا جنگ پہ جا رہا ہوں، جہاد پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا مولا ذرا زمین پہ تشریف فرما ہوئے. سرکار زمین پہ تشریف فرما ہوئے، یوں دایاں ہاتھ سرکار کے سر پہ رکھا اور بائیں سے زمین پہ چند لکیریں کھینچی. توجہ ہے میری جانب؟ یہ میری مائیں بہنیں ذرا بچوں کو خاموش کروائیں گی تو مجلس کا بڑا ماحول برقرار رہے گا. یوں دیکھنا میری طرف ہے جی. دایاں ہاتھ مولا کے سر پہ، بائیں سے زمین پہ لکیریں کھینچی. اب لکیریں کھینچ کے میرے مولا علی کی قسمت کا ذائچہ بنایا، یا یوں کیوں نہ کہوں قسمت بنانے والے کی قسمت کا ذائچہ بنایا. یہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ. میرے حق میں دعا فرمائیے گا. قسمت بنانے والے کی قسمت کا ذائچہ بنایا اور یوں پریشان ہوا. ظاہری بات ہے مولا کے ماننے والا تھا. کہتے مولا آپ وقت کے امام ہیں، آپ میرے حاکم ہیں، آپ میرے سردار ہیں. مولا میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، جنگ پہ جانا تو ہے، جہاد پہ جانا تو ہے، لیکن آج نہ جائیے گا. آج آپ کا ستارہ مقام نحس پہ ہے. مولا اسے 24 گھنٹے بعد مقام نحس سے نکل کے مقام نیک پہ آنا ہے. اگر ان 24 گھنٹوں کے دوران آپ جنگ پہ گئے تو مارے جائیں گے. ان 24 گھنٹوں کے دوران جنگ پہ گئے تو قتل ہو جائیں گے. قتل ہونے کا لفظ آیا، مر جانے کی بات ہوئی کہ پنجتن کی غیرت کی سرخی سمٹ کے علی کے چہرے پہ نمودار ہو گئی. ہاں لکھوڑیر زندہ باد. اگلا جملہ پڑھ کے میں جناب کے معیار سماعت کو سلام کرنے لگا ہوں. فرمایا یہ مرنا کیا ہوتا ہے، یہ مارنا کیا ہوتا ہے، یہ قتل کرنا کیا ہوتا ہے، یہ قتل ہونا کیا ہوتا ہے. مجھے محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے، میں جا رہا. ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ یا بڑی مہربانی. اب گئے جنگ پہ. جنگ پہ پہنچے. جس شخص نے وہ پیشن گوئی کی تھی نا کہ مولا 24 گھنٹوں کے دوران گئے مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، اسی لمحے وہ پیشن گوئی سن کے، قسمت کا ذائچہ دیکھ کے علی ایک لمحے کے لیے رکے نہیں، آگے بڑھے، میدان میں پہنچے. سامنے سے مد مقابل آیا. فضائل ذوالفقار کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. مد مقابل سامنے آیا. اس نے کہا یا علی وار کریے. فرمایا نہیں پہلے تو وار کر. اس نے کہا نہیں یا علی پہلے آپ وار کریں پھر میں وار کروں گا. ہے بہت بڑا تاریخ کا بہادر تھا، بڑی جنگوں کا فاتح تھا، بہت بڑا پہلوان تھا. کہتے یا علی آپ وار کیجئے پھر میں وار کروں، آپ وار کیجئے پھر میں وار کروں، آپ وار کیجئے پھر میں وار کروں. جس بندے کو یہ پھر سمجھ آ گئی وہ جتنے دن اس مجلس میں اس فرش عزا پہ آئے گا نا، 2 سال 4 سال 10 سال بعد پھر بھی مجھے دعا کرتا رہے گا. اس نے کہا یا علی پہلے آپ وار کریے پھر میں وار کروں گا. امیر المومنین مسکرائے، اس کی جانب دیکھ کے فرماتے ہیں او جاہل تجھے پتہ نہیں علی کے وار کے بعد پھر نہیں آتی. جسے سمجھ جی بڑی مہربانی. میرے مولا کے فضائل پہ مسکراتے ہوئے چہروں کی کیا بات ہے، بڑی مہربانی. جی پھر موقع نہیں لبنا، علی کے فضائل وار کے بعد پھر نہیں آتی. اس نے کہا اچھا. اب اس نے تلوار نکالی. ایک جملہ اختیار صاحب بڑا باریک اور لطیف ہے. میں 2 سال سے جملہ پڑھتا نہیں کیونکہ بندے بعض اوقات سمجھتے نہیں یا میرے سمجھانے میں کمی رہ جاتی ہے. تھوڑی سی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑا سا اپنے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جملے میں اشارہ واقعہ نہیں، اشارہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا جی جب مولا نے فرمایا نا علی کے وار کے بعد پھر نہیں آتی تو وار کر، علی کے وار کے بعد پھر نہیں آتی تو وار کر. سجاد صاحب تاریخ لکھتی ہے اس نے 3 کام کیے. اپنی تلوار نکالی پہلے نمبر پہ، اپنی تلوار نکالی دوسرے نمبر پہ، تلوار یوں سیدھی کی تیسرے نمبر پہ تلوار چلائی.
अब जो पीछे रह गया उसके साथ मेरी गिला तो बनता है ना जनाब। उसने 3 बार किए, 3 बार काम किए। पहला काम तलवार निकाली, दूसरा काम तलवार यूं सीधी की, तीसरा काम तलवार चलाई। तीनों कामों के होने के बाद चौथे नंबर पे अली ने, जुमला बारीक था जनाब, बात लतीफ थी, जिसे समझ आ गई अच्छा हुआ थोड़े बंदे समझे। चौथे नंबर पे अली ने उसकी तलवार के आगे अपनी तलवार रखी। किताब वाला लिखता है यहाँ उसकी तलवार अली की तलवार से टकराई कि उस मलऊन की तलवार 2 टुकड़े होकर जमीन पे गिर गई। अच्छा, अब सामने अली जैसा बहादुर हो, अली जैसा शुजा हो, अल्लाह का शेर हो, और बंदे के पास एक तलवार का सहारा हो, वो तलवार भी टूट जाए तो हालत क्या होगी। यूं जिस्म में कपकपी तारी, जुबान तालू के साथ, चेहरे का रंग जर्द हो गया, घबराए हुए लहजे में कहता है या अली, आपकी तलवार ने हमला करना तो दूर की बात, आपकी तलवार ने मेरी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। या अली, आज पता चला हम क्यों सुनते हैं अली ने उस पहलवान को भी मार दिया, अली ने उस शुजा को भी मार दिया, अली ने ये बहादुरी दिखाई, अली ने वो बहादुरी दिखाई। या अली, बहादुरी आपकी क्या है? बहादुरी तो आपकी तलवार की है, कमाल तो आपकी तलवार का है। फजाइल जुल्फ़िकार, कमाल तो आपकी तलवार का है। काश ये तलवार मेरे पास होती। नाज किया करो हम किस करीम के मानने वाले हैं। काश ये तलवार मेरे पास होती। काश की शीन अभी उसके मुंह में थी कि कायनात के सबसे बड़े करीम ने जुल्फ़िकार उसके सामने फेंक दी। फरमाया जा तू उठा ले और कर अली पे वार। हाय क्या कहने फजाइल जुल्फ़िकार के। किताब वाला लिखता है पूरे बदन की ताकत के साथ एकदम आगे बढ़ा। जाहिरी बात है सोच रहा था ऐसा ना हो अली का इरादा बदल जाए, अली तलवार उठा लें, मुझ पे हमला कर दें, लेकिन इसे पता नहीं था कि इसका मुकाबला कम ज़र्फ़ से नहीं आला ज़र्फ़ से है। यूं पूरे बदन की ताकत के साथ आगे बढ़ा, तलवार के दस्ते पे हाथ रखा, तलवार उठाने लगा, तलवार हिली कोई नहीं। अब बंदे पीछे रह गए हैं। फजाइल जुल्फ़िकार थक के नहीं सुनना। तलवार बड़ी मेहरबानी, तायद का शुक्रिया। तलवार उठाने लगा, तलवार हिली नहीं। फिर परेशान हुआ, कहता या अली, ये तलवार जो आप चलाते हैं, ये तलवार जिससे आप काफिर कत्ल करते हैं, जिससे आप लोगों के सर उतारते हैं, या अली ये तलवार तो उठाई नहीं जाती, आप ये तलवार चलाते कैसे हैं? या अली ये तलवार तो उठाई नहीं जाती, आप इस तलवार से सर कैसे उतारते हैं? या अली ये तलवार तो उठाई नहीं जाती, आप इससे 2 हिस्से कैसे करते हैं? अली मुस्कुराए, उसकी जानिब देखा, आगे बड़े, तलवार के दस्ते में हाथ रखा। किताब वाले ने बड़ा लतीफ जुमला लिखा, आज की पूरी मजलिस में मेरा पसंदीदा तरीन जुमला है। जनाब के मयार पे पूरा उतरे तो मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। अली आगे बढ़े, तलवार जुल्फ़िकार के दस्ते पे हाथ रखा, अली ने वो वजनी तलवार ऐसे उठाई जैसा बच्चा खिलौना उठाता। ओहो, यूं तलवार उठाई, कहते या अली, ये वही तलवार है जो अभी मुझसे हिली नहीं। या अली, ये वही तलवार है जिसे उठाने की मैं कोशिश करता रहा। या अली, आपने उठाई कैसे? या अली, आपने संभाली कैसे? या अली, इसे चलाते कैसे हैं? अली मुस्कुराए, उसकी जानिब देख के फरमाते हैं ये जुल्फ़िकार का दस्ता जो मेरे हाथ में है। ना ना ना, अभी फजाइल जुल्फ़िकार शुरू नहीं हुआ, अभी अली की जुबान से जुल्फ़िकार की शान पढ़ रहा हूँ, अभी जुल्फ़िकार की जुबान से जुल्फ़िकार की शान नहीं पढ़ी। अली मुस्कुराए, उसकी जानिब देखा, देख के फरमाते हैं ये जुल्फ़िकार का दस्ता जो मेरे हाथ में है, ये जुल्फ़िकार का दस्ता जो मेरे हाथ में है। वादा हो गया अगले 1 मिसरे में जुल्फ़िकार की तारीख पढ़ने लगा हूँ। फरमाते हैं ये जुल्फ़िकार का दस्ता जो मेरे हाथ में है, नजर ये मोमिन और मुशरिक पे डाल सकता है। ना ना ना, आपको पता नहीं अली की तलवार कैसे जंग लड़ती थी, जिसकी 7वीं नस्ल में भी कोई मोमिना ना हो उसे छोड़ देती थी। अली फरमाते हैं ये जुल्फ़िकार का दस्ता जो मेरे हाथ में है, ये जुल्फ़िकार का दस्ता जो मेरे हाथ में है, नजर ये मोमिन और मुशरिक पे डाल सकता है। ओए अली की तेग उठाए चलाए कौन भला, खुदा का हाथ ही इसको संभाल सकता है। हैदर हैदर हैदर
बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। आपके क्या कहने जी, इस जिक्र के क्या कहने, इस जिक्र सुनने वालों के क्या कहने है? इजाजत जी खुतबा शुरू करूं। अली की तलवार अपने फजाइल पढ़ रही है। मैं हूं जहां में आले मोहम्मद की आबरू। इख्तियार हुसैन साहब, जिस बंदे को आबरू का तर्जुमा आता है उसने ना बोल के ना इंसाफी की है। आबरू कहते हैं इज्जत को, ठीक है जनाब। अब मैं मिसरा दोहराऊंगा, आपको आबरू का तर्जुमा भी समझ आ गया। मेरी तसल्ली के लिए, मेरे अंदर के शायर के इत्मीनान के लिए बोल पड़िएगा। अली की तलवार कहती है मैं हूं जहां में आले मोहम्मद की आबरू। अच्छा, हर दावे की दलील होती है। सजाद साहब, अली की तलवार ने दावा किया, मैंने आलम तसव्वुर में दोनों हाथ जोड़े, मैंने कहा अली की तलवार बिल्कुल ठीक, तू आले मोहम्मद की इज्जत है, आले मोहम्मद की आबरू है, लेकिन इसकी वजह क्या है? अली की तलवार कहती है मैं हूं जहां में आले मोहम्मद की आबरू, पकड़ा है मुझको हैदर सफदर ने बावजू। हाथ उठाने वाले जिंदाबाद, हाथ उठा के हैदरी जी, बड़ी मेहरबानी। आपके क्या कहने, मालिक सलामत रखें। अली की तलवार कहती है मैं हूं जहां में आले मोहम्मद की आबरू, पकड़ा है मुझको हैदर सफदर ने बावजू। फैली है कायनात में मेरी भी खुशबू। आहा भाई, क्या कहने हैं, थोड़े बोले लेकिन कमाल बोले। अली की तलवार कहती है मैं हूं जहां में आले मोहम्मद की आबरू, पकड़ा है मुझको हैदर सफदर ने बावजू, पकड़ा है मुझको हैदर सफदर ने बावजू। फैली है कायनात में मेरी भी खुशबू, मैं जुल्फ़कार हूं, मैं हूं कुफ़ार की अदू। अदू कहती है दुश्मन को। यार बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये जिंदाबाद, आपकी क्या बात है, मालिक सलामत रखें। अली की तलवार कहती है मैं हूं जहां में आले मोहम्मद की आबरू, पकड़ा है मुझको हैदर सफदर ने बावजू। फैली है कायनात में मेरी भी खुशबू, मैं जुल्फ़कार हूँ, मैं हूँ कुफ़ार की अदू, मैं जुल्फ़कार हूँ, मैं हूँ कुफ़ार की अदू। अली की देख कहती है रहमत बनी हूँ दी के तरफदार के लिए, रहमत बनी हूँ दी के तरफदार के लिए। मौलवी कहते ना अली पैदा हुआ, हुसैन पैदा हुआ, हसन पैदा हुआ, तेरी मार्फत बस है, ये वो खानदान है जिनकी तलवारें भी नाजिल होती है। अली की तलवार कहती है रहमत बनी हूँ दी के तरफदार के लिए, भेजी गई हूँ हैदर कर्रार के लिए। हाथ उठा के एहतराम आज़म। जी बड़े
रहमत बनी हूँ दी के तरफदार के लिए, भेजी गई हूँ हैदर कर्रार के लिए। लुत्फ आ रहा है जनाब को? अली की तलवार कहती है भेजी गई हूँ हैदर कर्रार के लिए। मैंने कहा अली की तलवार तुझे भेजा तो है उस खुदा ने, लेकिन तेरा अपना कमाल क्या है? भेजने वाली तो वो ज़ात है, ये तो उसका कमाल है कि उसने तुझे अली के लड़ाई के लिए नाजिल फरमाया, अली की जंग के लिए खल्क फरमाया। लेकिन अली की तलवार तू क्या करती है? अली की तलवार कहती है हर सू अली के साथ ही लड़ती रही हूँ मैं, हर सू अली के साथ, अली के हाथ से हर सू अली के साथ ही लड़ती रही हूँ मैं, दुश्मन के सर को कलम भी करती रही हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, बंदे खामोश हो गए, कोई लुत्फ नहीं आया जनाब। अली की तलवार कहती है हर सू अली के साथ ही लड़ती रही हूँ मैं, दुश्मन के सर को कलम भी करती रही हूँ मैं, दुश्मन के सर को कलम भी करती रही हूँ मैं। आले रसूल हक पे यूं मरती रही हूँ मैं, हर मुनकरे रसूल पे चलती रही हूँ मैं। अली की तलवार के फजाइल, हाथ उठा के हाय जी, बड़ी मेहरबानी अली। अली की तलवार कहती है हर सू अली के साथ ही लड़ती रही हूँ मैं, दुश्मन के सर को कलम भी करती रही हूँ मैं। आले रसूल हक पे उमरती रही हूँ मैं, हर मुनकरे रसूल पे चलती रही हूँ मैं, हर मुनकरे रसूल पे चलती रही हूँ मैं। मैंने कहा अली की तलवार मुनकरे रसूल पे चल के तूने किया क्या है? मुनकरे रसूल की गर्दन पे चल के तूने किया क्या है? अली की तलवार कहती है हैदर की कसम, हैदर की कसम मैंने यूं दो नीम किया है। दो नीम कहते हैं दो टुकड़ों को यार। अब जो बंदा पीछे रह गया उसका अपना मुकद्दर, शबीउल हसन काज़मी का अपना नसीब। अली की तलवार कहती है हर सू अली के साथ ही लड़ती रही हूँ मैं, आले रसूल हक पे उमरती रही हूँ मैं, दुश्मन के सर को कलम भी करती रही हूँ मैं, हर मुनकरे रसूल पे चलती रही हूँ मैं। हैदर की कसम मैंने यूं दो नीम किया है, हर कद्दू को टुकड़ों में तकसीम किया। ओहो अली की तलवार का फजाइल, हर बंदा हाथ उठा के हाय अली। जी बहुत मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया, मालिक आपकी मेहनत कबूल फरमाए। हैदर की कसम मैंने यूं दो नीम किया है, हर एक कद्दू को टुकड़ों में तकसीम किया है। अली की तलवार कहती है हर मुनकरे तौहीद मैंने ज़ेर किया है। अली की तलवार अपना काम बता रही है जी, अली की तलवार अपना फजाइल बता रही है। हर मुनकरे तौहीद मैंने ज़ेर किया है। कितना बड़ा काम अली की तलवार ने किया है, हर मुनकरे तौहीद मैंने ज़ेर किया है। अच्छा जी, मेरा अपना मिजाज है, अपने मिजाज का शेर कहता हूँ, अपने मिजाज से पढ़ता हूँ, अपने अंदाज से पढ़ता हूँ। सजाद साहब जितना बड़ा काम है ना मैं उतने आहिस्ता से पढ़ने लगा हूँ। ठीक है जनाब, आपने जैसे सुनना है, आपकी मेहरबानी में फिर भी शुक्रगुजार। अली की तलवार कहती है हर मुनकरे तौहीद मैंने ज़ेर किया है, नबियों के दुश्मनों से इंतकाम लिया है। वाह वाह आपके लिए, वाह वाह आपके इसमें यार हैदरी, बड़ी मेहरबानी आपके मेयार के लिए, वाह वाह। आपको शेर सुनना आता है जनाब। हर मुनकर तौहीद मैंने ज़ेर किया है, नबियों के दुश्मनों से इंतकाम लिया है, इस्लाम की सिपाह का हर ज़ख्म सिया है। हर मुनकर तौहीद मैंने ज़ेर किया है, नबियों के दुश्मनों से इंतकाम लिया है, इस्लाम की सिपाह का हर ज़ख्म सिया है, इस्लाम की सिपाह का हर ज़ख्म सिया है, इस्लाम की सिपाह का हर ज़ख्म सिया है। सजाद साहब बंदे तलाश करते हैं ना, अली के घर में मौजा, हुसैन के घर में मौजा, हसन के घर में मौजा, ये हस्तियां ऊपर की बात है। अली की तलवार कहती है इस्लाम की सिपाह का हर ज़ख्म सिया है, मुझको खुदा ने ये भी तो एजाज दिया है। एजाज कहते हैं मोर्चे को, क्या कहने लखू डार के। अली की तलवार कहती है हर मुनकर मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। हर मुनकर तौहीद मैंने ज़ेर किया है, नबियों के दुश्मनों से इंतकाम लिया है, इस्लाम की सिपाह का हर ज़ख्म सिया है, मुझको खुदा ने ये भी तो एजाज दिया है। मैंने कहा कौन सा एजाज? अली की तलवार कहती है मुझको खुदा ने ये भी तो एजाज दिया है, जो मेरे आगे झुक गया वो फैज पा गया। ओहो ओहो, ये पिछले मोहल्ले वालों की
क्या बात है। मालिक आपके उठे हुए हाथों में रहमत नाजिल फरमाए। जिसके मुकद्दर में रिस्क नहीं मेरा मालिक रिस्क लिख दे, जिसके मुकद्दर में शिफा नहीं मेरा मालिक शिफा लिख दे, जिसके घर औलाद नहीं इस लम्हों का सदका मातमी औलाद लिख दे। मेरा मालिक जो परेशान है उसकी परेशानी है अली की जुल्फ़िकार का सदका दूर फरमा दे। अली की तलवार कहती है जो मेरे आगे झुक गया वो फैज़ पा गया। मुझको खुदा ने ये भी तो एजाज दिया है, कौन सा मौजज़ा कौन सा एजाज, जो मेरे आगे झुक गया वो फैज़ पा गया, जो मुझसे लड़ पड़ा वो जहन्नुम चला गया। ओहो अली की तलवार जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़े मेहरबानी। जंगलों में पहाड़ों में कुरान के 30 अपारों में, जंगलों में पहाड़ों में कुरान के 30 अपारों में मोहम्मद के वीर का जनाबे अमीर का ऊंचा बोल के दिल हर बंदा हाथ उठा के नाराए जी, बड़ी मेहरबानी। जो मुझसे लड़ पड़ा वो जहन्नुम चला गया। मैंने कहा अली की तलवार तूने अपने सारे फजाइल बता दिए, लेकिन कोई ऐसी हैसियत बताना। मसलन मैं कहता हूँ जी, मैं बंदा हकीर शायर हूँ, शेर कहता हूँ। एख्तियार हुसैन साहब ज़ाकिर हुसैन है, ये पूछें शाह साहब काज़मी साहब आप शेर तो कहते हैं, आप शायर तो हैं, लेकिन आपकी शायरी में हैसियत क्या है? आपके शेर क्यों दूसरे शायरों से मुनफरिद है? आपके कलाम में क्या इनफरादियत है? मैंने दोनों हाथ जोड़ के अली की तलवार की बारगाह में गुजारिश की। मैंने कहा तलवार जुल्फ़िकार मैं भी पूछ रहा हूँ, लखू डैर वाले भी पूछ रहे हैं, तूने अपने इतने फ़ज़ाइल पढ़े, लेकिन ये बता तेरी खासियत क्या है, तेरी क्वालिटी क्या है, तेरे करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तेरी खासियत क्या हैं? अली की तलवार मुस्कुरा के कहती है रखा है मेरी धार में रब ने हुनर कमाल। जिसे ये कमाल समझ आ गया उसके मयार समात कमाल। अली की तलवार कहती है रखा है मेरी धार में रब ने हुनर कमाल, लगता है मेरे रोब से मुनकर को डर कमाल। आहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अली की तलवार के फजाइल पे बोलने वालों को मेरा सलाम। अली की तलवार कहती है रखा है मेरी धार में रब ने हुनर कमाल, लगता है मेरे रोब से मुनकर को डर कमाल। तुम मेरा जब भी देखना चाहो अगर कमाल, तुम मेरा जब भी देखना चाहो अगर कमाल, तुम मेरा जब भी देखना चाहो अगर कमाल, दस्ते अली में देख लो मेरा सफर कमाल। आहा आहा किस हाथ में? यदुल्लाह में, अल्लाह के हाथ में। अली की तलवार कहती है रखा है मेरी धार में रब ने हुनर कमाल, लगता है मेरे रोब से मुनकर को डर कमाल। तुम मेरा जब भी देखना चाहो अगर कमाल, दस्ते अली में देख लो मेरा सफर कमाल, दस्ते अली में देख लो मेरा सफर कमाल। मैंने कहा अली की तलवार कौन सा कमाल सफर है? अली की तलवार कहती है जब मैं चलूं तो कुफ्र की गर्दन ही मोड़ दूं। आहा भाई लखू डर है अली की तलवार के हाथ उठा के हाय दरीन। अली की तलवार कहती है रखा है मेरी धार में रब ने हुनर कमाल, लगता है मेरे रौब से मुनकर को डर कमाल। तुम मेरा जब भी देखना चाहो अगर कमाल, दस्ते अली में देख लो मेरा सफर कमाल, दस्ते अली में देख लो मेरा सफर कमाल। आले मोहम्मद का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अगले शेर की हैरात शबीउल हसन काज़मी को अता की। लखू डैर वालों में अपने पास रखने नहीं लगा, आपकी अमानत समझ के आपकी झोली में डालने लगा हूँ। आले मोहम्मद की हैरात को जो बंदा अच्छे तरीके से वसूल भी ना कर सके उसका शबी काज़मी क्या करे? मैंने कहा अली की तलवार कहती है रखा है मेरी धार में रब ने हुनर कमाल, लगता है मेरे रोब से मुनकर को डर कमाल। तुम मेरा जब भी देखना चाहो अगर कमाल, दस्ते अली में देख लो मेरा सफर कमाल। अली की तलवार कहती है जब मैं चलूं तो कुफ्र की गर्दन ही मोड़ दूं, और जिसकी नस्ल पाक हो उसको छोड़ दो। भाई बहुत शुक्रिया। हाथ उठा के हाय ये बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखें। और जिसकी नस्ल पास हो उसको छोड़ दूं। मैंने कहा अली की तलवार तू है क्या? अली की तलवार कहती है मैं शाने किरदिगार हूँ, रब की अता भी हूँ। जी बड़ी मेहरबानी, आपके क्या कहने जिक्र सुनने की, आपकी समात के क्या कहने। अली की तलवार कहती है मैं शाने किरदिगार हूँ, रब की अता भी हूँ, सब मुश्किलों की धूप में साया नुमा भी हूँ।
मुश्किलों की धूप और साया, जिस बंदे को समझ आई गया, बड़ी मेहरबानी। अली की तलवार कहती है मैं शान किरदिगार हूँ, रब की अता भी हूँ, मैं शान किरदिगार हूँ, रब की अता भी हूँ, सब मुश्किलों की धूप में साया नुमा भी हूँ, मोमन की जो है कब्र में उसका दिया भी हूँ। आपके पे साथ दफाई करने की क्या बात है, मालिक सलामत रखें। अली की तलवार कहती है मैं शान किरदिगार हूँ, रब की अता भी हूँ, मैं शान किरदिगार हूँ, रब की अता भी हूँ, सब मुश्किलों की धूप में साया नुमा भी हूँ, मोमन की जो है कब्र में उसका दिया भी हूँ, मैं तेगे मुर्तजा हूँ, मैं तेगे खुदा भी हूँ। अली की तलवार हैदरी, अली की तलवार कहती है मैं शान किरदिगार हूँ, रब की अता भी हूँ, मैं सब मुश्किलों की धूप में साया नुमा भी हूँ, मोमिन की जो है कब्र में उसका दिया भी हूँ, मैं मुर्तजा की तेग हूँ, तेगे खुदा भी हूँ, मैं मुर्तजा की तेग हूँ, तेगे खुदा भी हूँ। मैंने कहा अली की तलवार एक मिसरे में अपनी फजीलत बता। अली की तलवार कहती है मैं तेग ऐसी हूँ, मैं तेग ऐसी हूँ कि जो तेगों की वली हूँ, मैं तेग ऐसी हूँ कि जो तेगों की वली हूँ, ये शान है मेरी कि मैं तलवारे अली हूँ। बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे। अलामा सबको नहीं आना, सबको नहीं आगे। बड़ी मेहरबानी जी, ये शान है मेरी कि मैं तलवारे अली हूँ। मैं असल में कसरत की वजह से, सफ़र की वजह से गले हम ज़ाकिरों के थके हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ के और मसाइब के 2 जुमले पढ़ के सलाम करने लगा हूँ। अली की तलवार कहती है ये शान है मेरी कि मैं तलवार अली हूँ। मैंने कहा अली की तलवार बिल्कुल ठीक, तूने अपने सारे फ़ज़ाइल बताए, हमने शक नहीं किया, क्योंकि हम जिन्हें मानते हैं उसके घर में शक नहीं करते। मेरे मौला की तलवार मैंने भी माना, लखू डैर वालों ने भी माना, लाहौर वालों ने भी माना, लेकिन अली की तलवार सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। तूने माजी में जो जो किया बहुत कमाल किया, तूने माजी में जो जो किया बहुत बेमिसाल किया। अली की तलवार ये बता तेरा मुस्तकबिल क्या है। आइए जी बिस्मिल्लाह, मालिक सलामत रखे। मैंने कहा अली की तलवार तूने मुस्तकबिल में करना क्या है, तूने आने वाले वक्त में करना क्या है। अली की तलवार मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहती है फिर मुझको जब इमाम ज़माना उठाएंगे। ना 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 ना, अब इमाम ज़माना की रैयत खामोश हो जाइए, इंसाफ है ही नहीं। अली की तलवार कहती है फिर मुझको जब इमाम ज़माना उठाएंगे, दुश्मन हमारे सारे तभी मर ही जाएंगे। हाँ भाई, अली की तलवार का मुस्तकबिल बता रहा हूँ। अली की तलवार अपनी जुबान से इमाम ज़माना की आमद का मंजर बता रही है। अली की तलवार इमाम ज़माना की बात करे, इमाम ज़माना की रैयत ना बोले। शबीउल हसन काज़मी का दिल, कलम और ज़मीर, दिल मानता ही कोई नहीं। अली की तलवार कहती है जब इमाम ज़माना उठाएंगे, दुश्मन हमारे सारे तभी मर ही जाएंगे। फिर अहले अज़ा हमको अपने पास लाएंगे, फिर अहले अज़ा हमको अपने पास लाएंगे। अपने अकीदे का मिसरा पढ़ने लगा हूँ, जिसका अकीदा मेरे साथ मिल जाए वो बंदा ताईद के लिए हाथ जरूर उठाए। अली की तलवार कहती है फिर मुझको जब इमाम ज़माना उठाएंगे, दुश्मन हमारे सारे तभी मर ही जाएंगे। फिर अहले अज़ा हमको अपने पास लाएंगे, सदका हमारी हस्ती का सब रिस्क खाएंगे। ओहो भाई क्या बात है जी, बड़ी मेहरबानी। हैदरी अली की तलवार कहती है फिर मुझको जब इमाम ज़माना उठाएंगे, दुश्मन हमारे सारे तभी मर ही जाएंगे। अहले अज़ा फिर हमको अपने पास लाएंगे, सदका हमारी हस्ती का सब रिस्क खाएंगे। मैंने कहा अली की तलवार तू करेगी क्या, सदका हमारी हस्ती का सब रिस्क खाएंगे। अली की तलवार कहती है दुश्मन नबी की बेटी का किस समझ जाएगा। ओहो मंजर तो बनाओ, लखुडार वालों, काबे की छत पे मेरे तेरे वक्त के इमाम, हाथ में तलवार जुल्फ़कार है। अली की जुल्फ़कार बता रही है होने क्या लगा है। अली की तलवार कहती है दुश्मन नबी की बेटी का किस समत जाएगा, बागे फदक का चोर भी फिर बच ना पाए। अली की तलवार कहती है जी, बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे। बागे फदक का चोर भी फिर बच ना पाएगा। मालिक आपको सलामत रखे। कितने अकीदत वाले मोमिन बैठे हैं।
کیونکہ برآمدگیوں کا سلسلہ شروع ہے قبلہ تفصیل سے مضمون جو برآمدگی ہے وہ تلاوت فرمائیں گے. میں شہادت پڑھنا چاہتا ہوں اس جوڑی کی کہ جس کے دنیا سے جانے کے بعد زینب کو ماں کہنے والے کوئی نہیں. ہائے حسین کیا کہنے گا، آپ کی عقیدت کے کیا کہنے، جو سمجھ گئے مالک آپ کی نسل دراز فرمائے. عزادارو، جتنے سید میری مجلس میں کوئی بیٹھے ہوں گے نا، میں خود بھی سید ہوں، قبلہ صاحب بھی سید ہیں. ایک پیغام دینے لگا ہوں آپ کو آغا نسیم عباس رضوی مرحوم کا، مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. قبلہ صاحب فرمایا کرتے تھے جتنے سید ہیں نا، بے شک پورا سال اپنے آپ کو کاظمی کہلوائیں، اپنے آپ کو رضوی کہلوائیں، اپنے آپ کو بخاری کہلوائیں، اپنے آپ کو زیدی کہلوائیں، اپنے آپ کو جو دل چاہے وہ سید کہلوائیں، لیکن سال میں صرف ایک مرتبہ شام کی طرف منہ کر کے کہا کریں بی بی ہم تیرے بیٹے زینبی سید ہیں. تو بی بی کربلا کے بعد تجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں. آج رکو من اللہ، علی کی بیٹی آپ سے راضی ہوں. آج 8 محرم ہے، میری اپنی کیفیت ایسی ہے. عزادارو، جب 28 رجب چلنے لگا نا قافلہ، تو ایک دفعہ جناب زینب عبداللہ کے گھر میں آئی اجازت لینے کے لیے. فرمایا چچا کی بیٹی، میں تجھے روک تو نہیں سکتا، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میری بھری ہوئی حویلی سے، میرے اتنے بڑے صحن سے، میری اتنی ڈھیر جاگیروں میں سے اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہی ہے؟ اب جسے جملہ سمجھ آئے گا اس پہ واجب ہے ماتم ضرور کرے. فرمایا میری بھری ہوئی جاگیر میں سے، اتنی بڑی حویلی میں سے اپنے ساتھ کیا لے جا رہی ہے؟ علی کی بیٹی کی چیخ نکلی رو کے. فرمایا صرف اپنی ماں کی جلی ہوئی چادر. ہائے حسین صدقے، علی کی بیٹی آپ کی ہائے قبول فرمائے. فرمایا صرف اپنی ماں کی جلی ہوئی چادر. فرمایا نہیں زینب، حسین دنیا کے رشتے میں میرا بھائی ہے، دین کے رشتے میں میرا امام ہے. زینب جب امام پہ مشکل بنے نا تو ریت پہ واجب ہے امام کا صدقہ دے. زینب تو ایسا کر، جتنی مائیں بیٹھی ہیں ان کی بے بس ہو کے خواہ نکلے گی. ماؤں کے حصے کا جملہ پڑھنے لگاؤں، ان کی ماتم کا جملہ پڑھنے لگاؤں. فرمایا زینب ایسے کر، میرے گھر سے اون و محمد کو ساتھ لے جا. جب حسین پہ مشکل بنے ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا. اجرکم من اللہ، مالک آپ کی خواہ قبول فرمائے. عزادارو، یہی وجہ تھی علی کی عالیہ بیٹی نے حسین کے صدقے کو پوری رات ہاتھ نہیں لگایا. شب عاشور علی اکبر کو تیار کرتی رہی، علی اکبر کی زلفیں بناتی رہی. اون و محمد کبھی خیمے کے باہر کبھی خیمے کے اندر. 10 محرم کو جب ملی نا اون و محمد کو ماموں سے اجازت، خیمے کے دروازے پہ آئے. فرمایا اماں ہمارا آخری سلام. جو جملہ پڑھنے لگا ہوں شاید مجھے شہادت کے جملے پڑھنے ہی نہ پڑھیں، اسی پہ تیرا گریہ اتنا بلند ہو جائے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. عزادارو، جب بیٹے آئے نا ماں سے ملنے، فرمایا اماں ہمارا آخری سلام. فرمایا اون محمد میری 3 حسرتیں ہیں، اگر وہ 3 حسرتیں پوری نہ ہوئی تو میں دودھ نہ بخشوں گی. ہائے حسین. فرمایا میری پہلی حسرت یہ ہے کہ اگر جنگ لڑتے لڑتے تم فرات کے قریب چلے جاؤ نا تو اون محمد پانی نہ پینا، ابھی میرا اکبر پیاسا ہے، ابھی حسین کا 6 مہینے کا اصغر پیاسا ہے. فرمایا اماں پانی پینا تو دور کی بات، ہم فرات کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. فرمایا اونا محمد میری دوسری حسرت یہ ہے، جنگ لڑتے لڑتے یہ کربلا ہے جاگیر علی اکبر، تم جاگیر علی اکبر سے باہر نکل جانا، تم حسین کا صدقہ ہو، حسین کی بیٹے کی جاگیر میں دفن نہ ہونا. عزادارو تیسری حسرت پڑھنے لگا ہوں، جس بندے کو سمجھ آ گئی بے بس ہو کے ماتم کرے گا. فرمایا اونا محمد یاد رکھنا میری تیسری حسرت یہ ہے، صبح سے جو میدان جاتا ہے جب زین سے گرتا ہے تیرے ماموں حسین کو بلاتا ہے. اونا محمد جب تم زین سے گرو تو ماموں حسین کو نہ بلانا، میرا بھائی صبح کی لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا ہے اور میرے بھائی نے ابھی بڑے لاشیں. اجرکم من اللہ. اپنی ہائے بلند کرو، میں آخری جملہ پڑھوں. گئے میدان میں عزادارو، بڑی خوبصورت جنگ لگ رہے تھے اونا محمد. میں بڑی جلدی ممبر چھوڑنے لگا ہوں. حسین کتاب والا لکھتے یوں خیمے کے در پہ کھڑے جنگ دیکھ رہے ہیں، زینب خیمے کے اندر کھڑی حسین کو دیکھ رہی ہیں.
किताब वाला लिखता है जैसे ही हुसैन के चेहरे पे उदासी आई, बहन तड़प के आगे बढ़ी, कहती है हुसैन क्या हुआ? फरमाया ज़ैनब तेरे बेटे जंग तो बड़ी खूबसूरत लड़ रहे हैं, ज़ैनब तेरे बेटे जंग तो बड़ी खूबसूरत लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ये जंग के कानून के खिलाफ है। फरमाया कौन सी बात? फरमाया जब तेरे बेटे फुरात के नजदीक जाते हैं आंखों पे हाथ रख लेते हैं। ज़ैनब का मुंह फुरात की तरफ फिर गया। फरमाया शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे ओनो मोहम्मद, अजरू को मेरे अल्लाह अजरू। जितने साहिब औलाद बैठे हैं मातम करो यार। अज़ादारो, अब जैसे ही हुसैन जंग देखते जाते हैं, ओनो मोहम्मद खूबसूरत लड़ते जाते हैं, दुश्मन को फिन्नार करते जाते हैं, हुसैन के चेहरे पर रौनक रहती है। जैसे ही हुसैन के चेहरे पे उदासी आई, हुसैन की आंखों से आंसू निकले, ज़ैनब दौड़ती हुई फिर करीब आई, भाई के दामन में हाथ डाला। फरमाया भैया परेशान क्यों हो? भैया मेरी जिंदगी में रोए क्यों हो? रो के फरमाया बहन ज़ैनब तेरे बेटे बड़ी खूबसूरत जंग लड़ रहे थे, लेकिन तेरे ओन के सीने में बर्छी लग गई है, तेरा मोहम्मद जीन से उतर गया है। जब ये जुमले कहे ज़ैनब बिल्कुल भी रोई नहीं, ज़ैनब बिल्कुल तड़पी नहीं। फरमाया तेरे ओन मोहम्मद जीन से गुजर गए, गिर गए हैं, तेरे बेटू ने मुझे पुकारा नहीं, लेकिन मैं उनकी लाशें उठाने जा रहा हूँ। ज़ैनब ने भाई का दामन यूं खींचा, रो के फरमाती है भैया हुसैन जहां गिरे हैं वहां पड़े रहने दो।